بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پھر اس نے 3D کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا، تم تینوں کو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ فرہاد ایک ایسا سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے۔ تم تینوں سمندر میں چھلانگ لگانے والے ہو۔ اس سمندر کی گہرائی میں اس سے مقابلہ کر کے واپس اپنے ہی کنارے پر آنا ہوگا۔ اگر نہ آ سکے اور اگر اس نے اپنی حکمت عملی سے معلوم کر لیا کہ تم تینوں کون ہو، تو وہ تاجکستان میں بیٹھے بیٹھے تینوں ڈیز کو 3 تابوتوں میں سلا دے گا۔ ڈی کرین نے کہا، مسٹر ہرارے، تم تو مشن شروع کرنے سے پہلے ہی ہمیں دہشت زدہ کر رہے ہو، لیکن ہم خوف زدہ ہونے والے نادان بچے نہیں ہیں۔ ہرارے نے کہا، نادان نہیں ہو، اسی لیے تمہیں ٹیلیپیتھی سکھائی گئی ہے، لیکن فرہاد کے سامنے خود کو بہت زیادہ دانا بھی نہ سمجھنا۔ تمہارے فائدے کی بات سمجھاتا ہوں۔ اس کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچنا، ہر پہلو پر غور کرنا، ذرا سی بھی الجھن یا شبہ ہو تو فوراً ہم سے مشورہ کرنا۔ ایسا کرو گے تو تبھی عمر تک زندہ رہو گے۔ سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے افسران نے بھی انہیں تاکید کی کہ کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ ہو تو وہ 3Ds اپنے بڑوں سے ضرور مشورہ لیا کریں۔ پھر سپر ماسٹر نے کہا، میں تاجکستان میں نوبل ہائر سے رابطہ کر رہا ہوں، تم تینوں میرے دماغ میں آؤ اور اس کی آواز سنو۔ اس نے رابطہ کیا۔ نوبل ہائر نے کہا، سر، آپ کی ہدایت کے مطابق میں اپنی رہائش گاہ کی 4 دیواری میں ہوں، نہ کسی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، نہ فون پر کسی سے رابطہ کر رہا ہوں۔ سپر ماسٹر نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہو۔ اگر ایسے ہی محتاط رہو گے تو فرہاد تمہارے اندر کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ میں ابھی فوج کے اعلیٰ افسران کو فرہاد کے متعلق بتا رہا تھا، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ تم بہت محتاط رہنے کے عادی ہو۔ ابھی ہمارے پاس خیال خوانی کرنے والوں کی کمی ہے، جو ہیں وہ دوسرے اہم معاملات میں مصروف ہیں۔ چونکہ وہاں فرہاد ہے، اس لیے ہم جلد ہی کسی ٹیلیپیتھی جاننے والے کو تمہارے پاس بھیجیں گے۔ شکریہ سر۔ اگر آپ کا کوئی خیال خوانی کرنے والا یہاں آ کر میرے دماغ کو لاک کر دے گا تو پھر فرہاد کی ٹیلیپیتھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تم اطمینان رکھو، تمہارے دماغ کو یہیں سے لاک کر دیا جائے گا۔ سپر ماسٹر نے رابطہ ختم کر کے مائک ہرارے سے پوچھا، اگر نوبل ہائر کے دماغ کو لاک کرایا جائے تو کیا فرہاد کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ وہ بولا، اگر نوبل ہائر کے مطابق فرہاد ابھی تک پہنچ نہیں پایا ہے تو پھر وہ بیچارہ بھی آئندہ اس کی خیال خوانی سے محفوظ رہے گا۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ڈی مورا نے کہا، میں ابھی اپنے بنگلے میں جاؤں گا، نوبل ہائر کے اندر پہنچ کر اس کے ذریعے وہاں کے اہم رہنماؤں کی آوازیں سناؤں گا۔ اس کے بعد اس کے دماغ کو ترمیمی عمل کے ذریعے لاک کر دوں گا۔ ڈی ہاروے نے کہا، ہم 3D وہاں کے مسلمان رہنماؤں کے ذریعے ان کے علماء کے اندر جائیں گے اور انہیں اپنا معمول اور تابعدار بنائیں گے۔ وہ خفیہ اجلاس برخاست ہو گیا۔ تمام افسران اور ٹیلیپیتھی جاننے والے اسی آرمی ہیڈ کوارٹر کے اندر اپنے اپنے بنگلے میں چلے گئے۔ مائک ہرارے نے بھی اپنے بنگلے میں آ کر ایک سپاہی کو کافی لانے کے لیے کہا، پھر ایک صوفے پر بیٹھ کر پارس کے متعلق سوچنے لگا۔ ابھی خفیہ اجلاس میں شریک ہونے سے پہلے بھی وہ پارس کے متعلق ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ اس وقت شیتارا کے دماغ کو اپنے قابو میں کرتے کرتے پارس کی مداخلت سے ناکام ہو کر اپنے بنگلے میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا تھا۔ شطرنج کی بازی میں کبھی شکست نہ کھانے والا دل ہی دل میں تسلیم کر رہا تھا کہ پارس بھی زبردست شاطر ہے۔ ناکامی کا سبب یہ تھا کہ وہ شیتارا سے فون کے ذریعے دوستی کرنے کے بعد اس کے تابعدار پاشا کی غیر معمولی سماعت پر بھروسہ کر رہا تھا۔ مائک ہرارے کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو پاشا پر بھروسہ کرتا، کیونکہ سب ہی اس کی غیر معمولی سماعت و بصارت اور حیرت انگیز جسمانی قوت کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ جو سنتا تھا، جو تاریکی میں دیکھ کر بتاتا تھا، اس پر یقین کر لیتے تھے۔ مائک ہرارے اور شیتارا نے پاشا کے ذریعے پہلے یہ معلوم کیا کہ پارس کس ہیلی کاپٹر میں دشمنوں سے جنگ کر رہا ہے اور آخری دشمن کو ختم کرنے کے بعد ہیلی کاپٹر میں کہیں جا رہا ہے۔ یوں خیال قائم کیا گیا کہ وہ کشمیر سے نکل کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیاچن گلیشیئر کی طرف جائے گا۔ چونکہ وہاں تیز برفانی ہواؤں کے سبب ہیلی کاپٹر کی پرواز ممکن نہیں ہوتی، اس لیے وہ درہ کراکرم، خنجراب یا پھر بھارتی علاقے لداخ کی طرف جائے گا۔ پھر انہوں نے پاشا کے ذریعے اس رات پارس کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ کسی عورت کی بھی آواز آ رہی تھی اور پارس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ عورت نیپالی زبان بول رہی ہے۔ مائک ہرارے کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ پارس کتنا بڑا فراڈ ہے۔ جو کچھ وہ پاشا کے ذریعے سن رہے ہیں وہ دراصل پارس انہیں ایک کیسٹ ریکارڈر کے ذریعے سنا رہا ہے
और उन्हें एक नेपाली औरत की मौजूदगी से समझा रहा है कि वो अभी भारतीय इलाके में कहीं है, और भारतीय इलाके से यही समझा गया कि वो कश्मीर से लद्दाख के दरमियान किसी बस्ती में है। अगर माइक हरारे को ज़रा सा भी शुबा होता कि पारस दिल्ली में शीतारा के कहीं आस पास है, तो वो कभी पूजा को अपनी मामूला बनाकर शीतारा को असाबी कमज़ोरी की दवा पिलाने और उसके दिमाग में घुसने की प्लानिंग ना करता। वो मैदान साफ देखकर बहुत बड़ी बाजी जीतने वाला था। अब वही बड़ी बाजी हार कर शीतारा और पारस पर यह जाहिर कर चुका था कि शतरंज का आलमी चैंपियन टेलीपैथी भी जानता है और उसका ताल्लुक सुपर मास्टर से है। बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब ये बिगड़ा हुआ काम किस तरह बनाया जा सकता था? अगर वो भारतीय फौज को बता देता कि शीतारा का मौजूदा फ़ोन नंबर क्या है और वो दिल्ली के किस मोहल्ले की एक कोठी में अभी मौजूद है, तो फौजी उसे ज़रूर गिरफ्तार करते, क्योंकि फौजी अफसरान शीतारा को देश भगत यानी मुहिब्बे वतन तस्लीम नहीं करते थे और कहते थे कि वो पारस की दीवानी है और कश्मीर में फ़ौजियों को मना करती है कि वो पारस को गोली ना मारें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख्मी करें। उसके बाद वो पारस पर काबू पा लेगी और वो फ़ौजी उसकी टेलीपैथी की वजह से मजबूर हो जाते थे। माइक हरारे के लिए ये एक अजीबोगरीब इश्क था कि दोनों एक दूसरे से दुश्मनी भी रखते थे और मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम भी आ सकते थे। पारस उसे दुश्मन समझकर उससे दूर दूर था। वो पाशा के जरिए उसकी आवाज़ सुनकर उसे तलाश कर रही थी। माइक हरारे की बातों में आकर उसे अपना गुलाम बनाना चाहती थी और उसी पारस ने उस बलाए जान महबूबा को हरारे की उम्र भर की गुलामी से बचा लिया था। उस वक्त पूजा आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला होकर एक बिस्तर पर पड़ी थी। हरारे उसके चोर ख्यालात पढ़कर शीतारा की मौजूदा मसरूफियात को समझ सकता था। उसने मालूम किया दाइमा ने एक डॉक्टर को बुलाकर पूजा का मुआयना कराया था। डॉक्टर उसे आसाबी कमज़ोरी दूर होने की दवा देकर और एक इंजेक्शन लगाकर चला गया था और कह गया था कि अभी पूजा को नींद आ जाएगी। शीतारा ने पूजा के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर कर कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। माइक हरारे ने मुझे फांसने के लिए तुम्हें आलायकार बनाया था। मैं खैरियत से हूँ, तुम फिक्र ना करो। मैं अपने बेडरूम में रहूँगी। कोई ज़रूरत हो तो मुझे या माँ जी को आवाज़ देना। तुम्हारी तवानाई जल्द ही बहाल हो जाएगी। पूजा ने आंखें बंद कर लीं। अब माइक हरारे उसके खाबिदा दिमाग से ये तस्दीक कर चुका था कि शीतारा अपने बेडरूम में है। उसने पूजा के चोर ख्यालात से एक फ़ौजी ऑफिसर का फ़ोन नंबर मालूम किया, फिर अपने फ़ोन का रिसीवर उठाकर उससे राबता किया और कहा, आप मुझे नहीं जानते, वैसे जानना भी ज़रूरी नहीं। मैं एक ऐसी अहम इत्तला दे रहा हूँ जिसे सुनकर आप खुश होंगे और सच्चे देश भगत की तरह फ़ौरन उस पर अमल करेंगे। उसने शीतारा की मौजूदा रिहाइश गाह का पता बताकर कहा, अगरचे शीतारा भारतीय है, एक हिंदू है, लेकिन फरहाद की फैमिली से उसका गहरा ताल्लुक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसने कश्मीर में पारस को गिरफ्तार नहीं होने दिया। अगर आपने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो वो टेलीपैथी के ज़रिए आपके तमाम फ़ौजी राज इस्लामी ममालिक तक पहुंचा देगी। अफसर ने कहा, अगर आप दुरुस्त इत्तला दे रहे हैं तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बाय द वे, आप हैं कौन? पहले आप शीतारा को गिरफ्तार करें, फिर मैं अपना तारुफ कराऊंगा और ये ताकीद करूंगा कि आप और आपके फ़ौजी जवान उसे गिरफ्तार करने तक बिल्कुल गूंगे बने रहें, वरना वो आपके दिमागों में जलजले पैदा करने लगेगी और हाथ से निकल जाएगी। माइक हरारे रिसीवर रखकर उस फौजी अफसर के अंदर पहुंच गया और उसकी कार्रवाई देखने लगा। वो अपने मातहत को बुलाकर कह रहा था, 25 मुसल्ला जवानों को तैयार करो, हम अभी एक कोठी का मुहासरा करेंगे। मातहत के जाने के बाद उसने बरी फौज के जनरल से राबता किया, उसे शीतारा के बारे में बताया और कहा, अगर इत्तला दुरुस्त हुई तो शीतारा 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाएगी। अगर वो किसी तरह बच निकलना चाहेगी तो उसे घेरने और गिरफ्तार करने के लिए शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि आप नाकाबंदी का हुक्म सादिर करें। दिल्ली शहर की पुलिस और इंतज़ामिया को अलर्ट कर दें ताकि वो टेलीपैथी जानने वाली शहर से बाहर ना जा सके। जनरल ने कहा, शीतारा पिछले दिनों हमारे लिए मुसीबत बनी रही। हमारे बड़े बड़े अफसरान के दिमागों में जाकर अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे अमल कराती रही। कई अफसरान की इंसल्ट करती रही। भगवान करे कि वो गिरफ्त में आ जाए, फिर हम उसकी टेलीपैथी समेत उसे चित्ता में जला देंगे। जनरल से राबता ख़त्म हो गया। वो अफसर अपने मातहत और 25 मुसल्ला फ़ौजी जवानों के साथ शीतारा की रिहाइशगाह की समत जाने लगा। तीनों अफवाज के आला अफसरान उस टेलीपैथी जानने वाली से इस कदर खार खाए हुए थे कि उसे जान से मार डालना चाहते थे, जबकि माइक हरारे ने सोच रखा था कि शीतारा को मरने नहीं देगा, सिर्फ ज़ख्मी करेगा
और उसके दिमाग पर आइंदा हुकूमत करता रहेगा। उन्होंने उस कोठी का मुहासरा कर लिया। इहाते का बड़ा गेट खुला हुआ था, कोई मुलाजिम वहां नहीं था। अफसर ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी, कॉल बेल के बटन को दबाया, फिर जोर से दरवाजे को पीटना चाहा तो वो खुल गया, क्योंकि अंदर से वो बंद नहीं था। वो 6 मुसल्लह फौजियों के साथ अंदर आया। ड्राइंग रूम से गुजर कर एक कमरे में देखा, वहां पूजा बिस्तर पर गहरी नींद में थी। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि पूजा डमी सितारा बनकर रहती थी। उस वक्त भी वो सितारा का चेहरा अपनाए हुए थी। एक मातहत ने अफसर से कहा, सर, मैंने इस लड़की को श्रीनगर के एक लेक व्यू होटल में देखा था। वहां यहूदा गिल की टीम से ताल्लुक रखने वाली अरीना कत्ल की गई थी। उसका एक साथी पाशा जख्मी हुआ था और एक शख्स जो एक हिप्पी के भेस में था उसका भी कत्ल हुआ था। ये लड़की वारदात की जगह मौजूद थी, फिर अचानक वहां से कहीं चली गई। अफसर ने कहा, हमने कभी सितारा तो नहीं देखी है, शायद यही सितारा है। ड्राइंग रूम में फ़ोन की घंटी बजने लगी। मातहत ने वहां आकर रिसीवर उठाकर हेलो कहा। माइक हरारे ने कहा, अपने अफसर से कहो वो जिस लड़की को नींद की हालत में देख रहा है वो सितारा की डमी है, उसका नाम पूजा है। असली सितारा और उसकी बूढ़ी दाई माँ दूसरे बेडरूम में है। मातहत ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह कैसे मालूम हो रहा है कि हम सितारा को नहीं उसकी डमी को देख रहे हैं? सवाल करने में वक्त ज़ाया ना करो, मैं तुम्हारे अफसर का मुखबर हूँ, और याद रखो इसी कोठी के किसी पिछले कमरे में वो पाशा भी होगा जो होटल लेक व्यू के डाइनिंग हॉल में जख्मी हुआ था। मातहत रिसीवर रखकर तेजी से चलता हुआ अफसर के पास आया। अफसर पूजा को झंझोड़ कर जगा रहा था। वो कमजोरी से कराहती हुई जरा आंखें खोल रही थी और फिर सोने लगती थी। मातहत ने कहा, सर, फोन पर आपका एक मुखबर कह रहा है कि यह सितारा की डमी है, इसका नाम पूजा है। असल सितारा एक बूढ़ी दाई माँ के साथ किसी दूसरे बेडरूम में है। वो तमाम मुसल्लह फौजी उस कोठी के तमाम कमरों के दरवाजे खोल खोल कर देखने लगे। तमाम कमरे खाली थे। मातहत ने कहा, फ़ोन पर बताया गया है कि पाशा भी कोठी के किसी पिछले कमरे में है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ वही पूजा है। माइक हरारे अफसर के अंदर मौजूद था और सितारा के नज़र न आने पर मायूस हो रहा था। वो पूजा से यह कहकर गई थी कि दूसरे बेडरूम में रहेगी। जैसा कि वो पूजा को छोटी बहन की तरह चाहती थी, उसके पेश नज़र ये सोचा नहीं जा सकता था कि वो छोटी बहन को बीमारी की हालत में छोड़कर चली जाएगी। फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। इस बार रिसीवर अफसर ने उठाकर कान से लगाते हुए पूछा, हेलो, कौन है? सितारा की आवाज़ आई, वही हूँ जिसे तुम तलाश कर रहे हो। अभी तुम्हारे अंदर सुपरमास्टर का एक ख्याल ख्वानी करने वाला माइक हरारे छुपा हुआ है। वो तुम्हें मेरे पीछे दौड़ा रहा है। मत दौड़ो, थक जाओगे, गिर जाओगे, और अगर मेरे इल्म से अपाहज हो गए तो फौज में रहने के काबिल नहीं रहोगे। वो बोला, हम जख्म खाने और देश पर जान देने के लिए वर्दी पहनते हैं, तुम्हारी तरह अपने देश के दुश्मन नहीं हैं। तुम लोग मुझे दुश्मन बना रहे हो। मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए हो? तुमने पिछले दिनों हमारे कई आला अफसरान को गालियां दी थीं और बाज़ों के दिमागों में जलजला पैदा किया था। वो अफसरान अपने फ़राइज़ से कोताही कर रहे थे और ड्यूटी के वक्त शराब पिया करते थे। ये समझते थे कि सियासी हुक्मरान उन्हें रोकने टोकने की जुर्रत नहीं कर सकते और उनसे ऊपर सिर्फ भगवान है, और भगवान उन्हें सज़ा देने पर धरती में नहीं आएगा। इसलिए मैं उन्हें सज़ा देकर उन्हें फ़राइज़ को समझने और अदा करने पर मजबूर करती हूँ। तुम्हें हमारे देश से और हमारे फौजियों से नहीं, सिर्फ पारस से दिलचस्पी है। जब भी वो गिरफ्त में आते आते निकल जाता था, तुम उस बात का गुस्सा हम पर उतारती थीं। जब उसकी मौत की झूठी खबर फैली तो तुमने हमारे कई अफसरान के दिमागों में जलजले पैदा करके उन्हें दिमागी मरीज बना दिया। श्रीनगर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। उस एक शहर में पूरी फौज पारस का सुराग ना लगा सकी। तुम लोगों को अपनी ये कोताही और गैर जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रही है। हम सब ने मुतफ़िका तौर पर यह समझ लिया है कि तुम फरहाद के बेटे पारस की दाश्ता हो, उसके साथ रातें गुजारना नसीब नहीं हो रही हैं, इसलिए हम पर गुस्सा उतारती हो। वो गुस्से से भड़क गई। मोहब्बत से कुर्बान होने और पारस की तमन्ना करने वाली के लिए ये एक गाली थी कि वो दाश्ता है। उसने अचानक अफसर के दिमाग में जलजला पैदा किया। वो यकबारगी चीख मार कर उछलता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। रिसीवर हाथ से छूट गया। अब फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं थी। वो उसके अंदर बोली, कुत्ते, तू मोहब्बत को क्या समझेगा? औरत की शर्मो हया को क्या समझेगा? शर्म वालियाँ किसी एक की होती हैं और सर से पैर तक अपने बदन को, अपनी ज़ात को, अपने दिल की एक एक धड़कन को और अपने दिमाग की एक एक सोच को
सिर्फ अपने एक चाहने वाले की इमानत समझती हैं। वो अपनी इमानत मांगता है तो वो देती हैं, नहीं मांगता है तो उसी के लिए खुद को संभाल कर रखती हैं। वो तैश में आकर बोल रही थी। मुसल्ला फौजी अपने अफसर को फर्श पर तड़पते देखकर उसे संभाल रहे थे। उसका मातहत कह रहा था, सितारा, तुम कितने अफसरान और फौजी जवानों को दिमागी मरीज बनाओगी? तुम्हारा बुरा अंजाम करीब है। हमें मालूम हो चुका है कि तुम इसी दिल्ली शहर में हो। हम तुम्हें इस शहर से बाहर निकल भागने का मौका नहीं देंगे। वो दिमागी तौर पर होटल ताजमहल के एक कमरे में हाजिर हो गई। अगर चाहती तो मातहत को भी सज़ा दे सकती थी, लेकिन ये बात अहम थी कि दिल्ली में उसका सुराग मिल गया है। अब शहर की नाकाबंदी होगी और उसे यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा फ़ौरन ही शहर छोड़ने के लिए कोई महफूज रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उसने दाई माँ से कहा, माइक हरारे अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसने भारतीय सेना को मेरे पीछे लगा दिया है। शहर की नाकाबंदी हो रही होगी। हर जवान और बूढ़ी को चेक किया जाएगा। दाई माँ ने कहा, तेरी एक पहचान ये है कि मैं बूढ़ी तेरे साथ हूँ और पाशा जैसा पहाड़ तेरा बॉडीगार्ड है। पुलिस और फौज वाले सबसे पहले ताजमहल जैसे महंगे होटल में तुझे ढूंढने आएंगे। वो एक छोटे से बैग में ज़रूरी सामान रखते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। तुम भी यहाँ से निकलकर किसी घर में अपना ठिकाना बनाओ। पाशा से कहो रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में रहे, मैं राबता करती रहूँगी। पाशा उसी होटल के दूसरे कमरे में था। वो उसे और दाई माँ को छोड़कर बाहर आई। तेज़ी से सोचती रही कि शहर से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करे। वो होटल से बाहर आकर एक फुटपाथ पर खड़ी हो गई। अगर महज पूरी फौज के दरमियान से गुजरना होता तो वो उन सब की आंखों में टेलीपैथी की धूल झोंक कर बखैरियत किसी दूसरे शहर में पहुंच जाती। लेकिन उसे माइक हरारे की तरफ से खतरा था। वो भारतीय फौजी अफसरान से ताउन कर रहा होगा। जिस औरत पर भी सितारा होने का शुबा होगा वो उसी औरत के चोर ख्यालात पड़ता होगा। अगर सितारा भी किसी फौजी अफसर की निगाहों में आ जाती और उस अफसर के साथ माइक हरारे होता और वो हरारे की आमद पर अपना सांस रोक लेती तो उसे दिमाग का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया जाता, फिर उसे ज़ख्मी कर दिया जाता और यूं हरारे उसके अंदर आकर तस्दीक कर देता कि वही सितारा है। फिल वक्त ये इत्मीनान था कि कोई उसे चेहरे से नहीं पहचानता। पूजा उसकी डमी की शक्ल थी। ऐसी 6 डमीज़ दुनिया के बड़े मुल्कों के बड़े शहरों में थीं। दोस्त और दुश्मन उन तमाम डमीज़ को देखकर सितारा की सूरत से आशना हो सकते थे और फुटपाथ पर खड़ी हुई सितारा उनमें से किसी की हम शक्ल नहीं थी। अकल कह रही थी कि अब इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना किसी न किसी चेक पोस्ट पर पकड़ी जाएगी। मामला पुलिस का नहीं फौज का था, लिहाजा पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से उसे तलाश कर रही थी। दानिशमंदी यही थी कि जब तक दुश्मन उसे तलाश करने में नाकाम ना हो और नाकाबंदी ख़त्म ना हो, वो इसी शहर में किसी ऐसी जगह पनाह ले जहां पुलिस और फौज ना पहुंच सके। भला ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां वो पहुंचे वहां पुलिस या फौज ना पहुंच सके। यूं परेशानी में छुपने के लिए तदबीर सोची जाए तो दिमाग काम नहीं करता। ये बात यकीनी सी लगती है कि जिस जगह एक इंसान पहुंच सकता है तो वहां 10 और भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बात भी यकीनी लगती है कि जहां खुशबू होती है वहां बदबू नहीं आती, जहां पानी होता है वहां आग नहीं लगती। ऐसी कोई दलील सितारा के जहन में नहीं थी। ऐसे ही वक्त एक शख्स गले में मफलर डाले सिगरेट के कश लगाते हुए उसके करीब आया। वो अपनी बड़ी बड़ी मूंछों से और हुलिये से बदमाश लगता था। उसने चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ते हुए पूछा, क्या अकेली हो? माँ कसम मैं भी अकेला हूँ। शायद हम दोनों के लिए ही कहा गया है कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे अकेले दो। सितारा को उसकी बात पर गुस्सा आया। वो एक चुटकी बजाकर उसे फुटपाथ से सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे फेंक सकती थी, मगर गुस्से के बावजूद अकल आई कि मुस्कुराकर बोलना चाहिए। शायद ऐसे वक्त गुंडे बदमाशी काम आ जाएं। वो मुस्कुराकर बोली, मैं अकेली तुम अकेले, मगर हम जाएंगे कहाँ? वो खुश होकर बोला, हमारे देश की ज़मीन पर तरह तरह की जन्नतें आबाद हैं, हम ऐसी ही एक जन्नत में चलेंगे। उसने 2 उंगलियां मुंह में डालकर ज़ोर से सीटी बजाई। कुछ फासले पर एक टैक्सी खड़ी हुई थी। वो स्टार्ट हुई और फिर तेज़ी से चलती हुई करीब आकर रुक गई। उसमें से एक दुबला पतला बदमाश निकलकर बोला, उस्ताद तुम्हारा जवाब नहीं है, शिकार को पहले ही भांप कर टैक्सी वाले को रोक रखा था। उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। सितारा वहां बैठ गई। दोनों बदमाश उसके आसपास आकर बैठ गए। एक ने ड्राइवर से कहा, चलो आगे बढ़ो, हम रास्ता बताएंगे। सिख ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, बाऊजी हम ड्राइवर हैं, सवारियों को खूब पहचानते हैं। जिस अंदाज में छोकरी को ले जा रहे हो उससे मंजिल का पता चल गया है।
शीतारा ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। समझ रही थी कि ये लोग उसे बाज़ारे हुस्न में ले जाएंगे। वो एक औरत के लिए बड़ी शर्मनाक जगह है, लेकिन उसके लिए महफूज पनाहगाह बन सकती है। पुलिस और फौज वाले कभी नहीं सोचेंगे कि शीतारा पेशा करने वालियों की जगह पाई जा सकती है। वो मुतमईन थी कि कोई मर्द वहाँ उसे हाथ नहीं लगा सकेगा। उसकी ज़िंदगी में तो बस एक ही मर्द आया है, फिर कोई दूसरा कभी नहीं आएगा। ऐसा सोचते वक्त उसे पारस याद आ रहा था। उसने फ़ोन के ज़रिए उसे माइक हरारे के मकरो फरेब से बचाया था, और जिस तरह बचाया था उससे ज़ाहिर हो रहा था कि वो भी इसी दिल्ली शहर में है। क्या वो अब भी यहाँ होगा? उसने कहा था कि श्रीनगर में काली संगम की इमारत में दुश्मनों से बच निकलने में शीतारा ने उसकी मदद की थी। वो किसी का कर्ज अपने सर पर नहीं रखता, इसलिए जवाबन उसे एक दुश्मन की मामूला और ताबेदार बनने से बचा कर जा रहा है। क्या वो जा चुका है? ये शहर छोड़ चुका है? क्या उसने ये नहीं सोचा होगा कि माइक हरारे नाकाम होकर फिर कोई चाल चल सकता है, और ऐसे वक्त फिर उसे अपने महबूब के ताउन की ज़रूरत पेश आएगी। ऐसे वक्त पारस का कुछ जिक्र हो जाए कि वो श्रीनगर से दिल्ली क्यों चला आया, जबकि उसे अमरीकी अज़ाइम का पता चल गया था कि वो सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय और पाकिस्तानी फ़ौजों की नकलो हरकत और फ़ौजी कमज़ोरियाँ मालूम करना चाहते हैं। पारस ने तय किया था कि वो कश्मीर से अब पाकिस्तान की समत दरा कराक्रम के इलाके में जाएगा। ऐसे ही वक्त आमना फरहाद यानी रसवंती ने उसे राबता किया। फिर कहा, 24 घंटे के बाद आदिल और ऐना अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के साथ शाहराह रेशम के करीब खुंजराब पहुंचेंगे। सुपरमास्टर के आला कार भी ऐसे ही अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के साथ वहां जा रहे हैं, और उन आलात के ज़रिए दोनों मुल्कों के फ़ौजी राज मालूम करने वाले हैं। पारस ने कहा, मामा, मैं भी उसी तरफ जाने के मुतालिक सोच रहा था। मैं जानती हूँ बेटे, मगर 24 घंटे के बाद जाओ। तुमने लेक व्यू में पूजा को देखा है, वो वापस शीतारा के पास जा रही है। उसका ताकुब करो और शीतारा पर नज़र रखो। मेरी होने वाली बहू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसे सिर्फ मुसीबत से नहीं, दिल्ली शहर से भी बाहर पहुँचाकर खुंजराब चले जाओ। पारस ने माँ की हिदायत पर अमल किया। पूजा का ताकुब करता हुआ दिल्ली आया। वहाँ शीतारा ने पूजा की रिहाइश का अलग इंतज़ाम किया था। उसे एयरपोर्ट से साथ लेकर उसकी रिहाइश गाह में आई और वहाँ देर तक रही, क्योंकि पूजा की तबीयत ख़राब हो गई थी। ये वही वक्त था जब माइक हरारे ने बीमार पूजा के दिमाग में जगह बना ली थी। इन वाक़यात की तफसीलात पिछले बाब में बयान की जा चुकी है। शीतारा आधी रात गुजर जाने के बाद दाई माँ के साथ पूजा के मकान से निकली, फिर अपनी कोठी की तरफ गई। पारस ने उसका ताकुब करके उसकी कोठी को भी देख लिया। फिर रात गुजारने के लिए एक दरमियाना दर्जे के होटल में आ गया। वहाँ एक कमरा हासिल करके आराम से सो गया। इरादा था कि कम से कम 4 घंटे तक सोने के बाद पूजा और शीतारा की खबर लेगा, लेकिन 4 घंटे से पहले ही आंख खुल गई। बारबरा उसके अंदर कोड वर्ड्स अदा करके बोल रही थी, काम के वक्त गहरी नींद सोते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारे साथ सोता तो ज़रूर शर्म आती, दोनों साथ शर्माते तो अच्छा लगता। शट अप, तुम्हें ऐसी बातों के सिवा आता भी क्या है? बेचारी आफरीन जैसी ना जाने कितनी लड़कियां तुम्हारे इश्क में जान गंवा बैठी हैं। वो एक सरदाह भर कर बोला, मुझे आफरीन की मौत का सदमा है, मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा, लेकिन सदमा करने से वो वापस नहीं आएगी। फिर मेरी जिंदा दिली वाली जो फितरत है वो फितरत कायम रहेगी। तुम अपनी बात करो, कैसे आना हुआ? वो बोली, मामा ने हिदायत की थी कि मैं पूजा के पास जाऊं और तुम्हें उसके बारे में मालूमात फराहम करूं। फिर बारबरा ने बताया कि वो बीमार पूजा के दिमाग में खामोशी से गई थी। वहाँ एक शख्स उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना चुका है और उसके ज़रिए शीतारा को आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके उसे भी अपनी मामूला और कनीज़ बनाने वाला है। इस वक्त पूजा ने एक मेडिकल स्टोर से एक मुज़िर दवा ख़रीदी है और वो अब शीतारा की कोठी की तरफ जा रही है। बारबरा ये मालूमात फराहम करने के बाद चली गई। उसके बाद पारस ने जिस तरह ड्रामाई अंदाज में शीतारा को माइक हरारे की कनीज़ बनने से बचाया, उसका तफसीली जिक्र मैं भी पिछले बाब में कर चुका हूँ। माँ की एक हिदायत पर अमल करने के बाद दूसरी हिदायत भी याद रही कि शीतारा को दिल्ली शहर से बाहर पहुँचाना है। गोया अभी मुसीबत के साए उस पर मंडला रहे थे, अगरचे वो हरारे की साजिश से बचने के 1 घंटे बाद ही अपनी कोठी छोड़ चुकी थी। दाई माँ और पाशा के साथ होटल ताज महल में चली गई थी। पारस दूर ही दूर से उसकी निगरानी कर रहा था। उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, इसलिए ताकुब में दुश्वारी हो रही थी। वो सोच रहा था पता नहीं वो और कहाँ कहाँ भटकेगी। उसका पीछा करने के लिए एक गाड़ी लाजमी थी।
वो दरमियाने दर्जे के होटल में वापस आया। वहाँ एक सिख ड्राइवर अपनी टैक्सी में बैठा चाय पी रहा था। पारस के जहन में एक तदबीर आ गई। उसने मेकअप का कुछ सामान खरीदा, होटल के कमरे में आकर चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का इजाफा किया, सर पर पगड़ी बांधी और पूरी तरह एक सिख बनकर होटल से बाहर आ गया। उस होटल के सामने कितने ही रिक्शे और टैक्सी वाले आकर रुकते थे, खाना खाते थे या सिर्फ चाय पी कर चले जाते थे। उस वक्त वहाँ हिंदू ड्राइवरों के अलावा 2 सिख ड्राइवर भी थे। एक ड्राइवर ने आगे बढ़कर उससे पूछा, भैया सत श्री अकाल, कित्थे जाना है? पारस ने करीब आकर धीमी आवाज में कहा, सत श्री अकाल, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मेरे सिख भाई हो, इसलिए अपना एक राज तुमसे कहता हूँ। ज़रूर कहो। मेरा नाम गुरबचन सिंह है। भाई कहते हो तो दिल की बात कह दो। पारस ने राजदारी से कहा, मैं अमृतसर से आया हूँ। भारत सरकार के पास बागी सिखों की जो फहरिस्त है उसमें मेरा भी नाम है। मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, मैं छुप छुपाकर दिल्ली आ गया हूँ। वो पारस के शाने पर हाथ मारकर बोला, भाईया फिक्र ना कर, हम तुझे पनाह देंगे, मगर इंटेलिजेंस वालों ने अमृतसर में तेरी तस्वीर वगैरह भी हासिल की होगी, वो तस्वीर के जरिए तुझे पहचान लेंगे। पारस ने कहा, जासूस तो क्या, मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं पहचान सकेंगे। ये मेरा असली चेहरा नहीं। मैंने 5 बरस तक बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप मैन की हैसियत से मुलाजमत की है। मुझे मेकअप करने का ऐसा तजर्बा है कि आदमी का हुलिया बदल कर रख देता हूँ। वाह भैया, फिर तो तुम कमाल के भैया हो। क्या काम धंधा तलाश कर रहे हो? हाँ, यही मेरी परेशानी है। अमृतसर में टैक्सी चलाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई महाजन किसी जमानत के बगैर मुझे अपनी टैक्सी नहीं देगा। ओए परवाह ना करो, अभी मेरे साथ चलो, टैक्सी भी मिलेगी और तुम्हारा लाइसेंस भी बना दिया जाएगा। चलो आ जाओ। उसने पारस को अगली सीट पर अपने पास बिठाया, फिर टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए पूछा, भैया तेरा नाम क्या है? असल नाम भगत सिंह है, लेकिन मैं यहाँ सबको अपना नाम हरनाम सिंह बताता हूँ। ठीक है, हरनाम सिंह ही बनकर रहो, कोई फिक्र ना करो, कोई गड़बड़ होगी तो हम संभाल लेंगे। यहाँ तुम्हारे रहने और खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। वो बातें करते हुए लोक नायक भून के इलाके में आ पहुँचे। वहाँ खान मार्केट में कारों और टैक्सियों की मुरम्मत का एक कारखाना था। उसका मालिक एक बूढ़ा सिख था। गुरबचन सिंह ने पारस का उससे तारुफ कराया, फिर एक छोटे से कैबिन में ले जाकर यह असलियत बताई कि पारस खालसा तहरीक का एक जानिसार है, मेकअप का माहिर है, चेहरा बदलकर रूपोशी की जिंदगी गुजार रहा है, अब यहाँ टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करना चाहता है। बुजुर्ग सिख ने खुश होकर उसके शाने को थपथपाया, फिर कहा, यहाँ कोई पूछे तो कह देना कि मेरे भतीजे हो, कल तक तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, आज आराम करो। वो बोला, मैं आज ही से काम करना चाहता हूँ, आप मुझे एक टैक्सी दे दें, लाइसेंस के बगैर कोई पुलिस वाला रुकेगा तो मैं रिश्वत देकर पीछा छुड़ा लूँगा। पारस की इस बात पर सब ने कह कहा लगाया, फिर उसे एक टैक्सी चलाने को मिल गई। बुजुर्ग सिख ने कहा, रात को नाइट शो ख़त्म होने तक गाड़ी चलाओ, फिर वापस आ जाओ, जब तक कोई ठिकाना ना बने यहाँ गैरेज में रहो। यूं पारस को टैक्सी मिल गई। जब वो टैक्सी चलाता हुआ ताजमहल होटल के करीब पहुंचा तो रात का अंधेरा फैल रहा था। उसने एक जगह गाड़ी रोक दी, फिर टेलीफोन बूथ में आया। वो दिन के 11 बजे ये मालूम करके गया था कि शितारा ने किस नाम से होटल के 2 कमरे हासिल किए हैं। उसने बूथ में आकर होटल के काउंटरमैन से राबता किया, फिर पूछा, कमरा नंबर 218 में कमला देवी मौजूद हैं या जा चुकी हैं? अगर वो होंगी तो मैं उनसे मुलाकात के लिए आऊँगा। काउंटरमैन ने कीबोर्ड की तरफ देखा, फिर कहा, कमला देवी मौजूद हैं, आप आ सकते हैं। वो रिसीवर रखकर बूथ से बाहर आ गया। ये मालूम हो गया कि शितारा भी होटल में मौजूद है। वो टैक्सी के पास आकर खड़ा हो गया। अब शितारा होटल से निकलकर कहीं भी जाती तो वो टैक्सी में बैठकर आसानी से उसका ताकुब कर सकता था। एक गाड़ी की जो कमी थी वो पूरी हो गई थी और उसने अपना अच्छा खासा भेस भी बदल लिया था। फुटपाथ पर 2 गुंडे खड़े हुए थे। उनमें से एक हट्टा कट्टा था और दूसरा दुबला पतला सा था। उनके अंदाज से पता चल रहा था कि वो अपने किसी शिकार की तलाश में है। ऐसे ही वक्त शितारा होटल से बाहर आई। उसके पास एक सफरी बैग देखकर पारस ने अंदाजा किया कि वो होटल छोड़ रही है। एक बदमाश सिगरेट के कश लगाता हुआ उसके पास जाकर कुछ कह रहा था। दूसरे दुबले पतले बदमाश ने टैक्सी के पास आकर पूछा, सरदार जी सवारी ले चलोगे? वो बोला, आहो सवारी कित्थे है? वो मेरा यार उधर गया है, अभी आता है, फिर चलेंगे। थोड़ी देर बाद उसके यार ने 2 उंगलियों को मुंह में डालकर सीटी बजाई। दूसरे बदमाश ने दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए कहा, चलो सवारी उधर आगे खड़ी है।
पारस ने टैक्सी आगे बढ़ाकर शितारा के करीब रोक दी, पिछली सीट का दरवाज़ा खोला, फिर वो दोनों बदमाशों के दरमियान आकर बैठ गई। एक ने पारस से कहा, चलो आगे बढ़ो, हम रास्ता बताएंगे। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, बाबूजी हम ड्राइवर हैं और सवारियों को खूब पहचानते हैं। जिस अंदाज में छोकरी को ले जा रहे हो उससे मंजिल का पता चल गया है। पारस ने अकबनुमा आईने का जाविया ऐसा रखा था कि शितारा नजर आ रही थी। उसकी जेरे लब मुस्कुराहट बता रही थी कि वो शिकार करने वालों को शिकार करने वाली है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।